हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आज हम करने जा रहे हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके हैं। पहला ज्योमेट्रिकल फॉर्म, दूसरा वेक्टोरियल फॉर्म और तीसरा पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। तो इस चैप्टर के अंदर हम केवल ज्योमेट्रिकल फॉर्म और पोलर फॉर्म पढ़ेंगे। वेक्टोरियल फॉर्म को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं ज्योमेट्रिकल फॉर्म से। So as we know that a point can be represented on an xy plane by a pair of real number which is x comma y. In exactly similar manner, a complex number can also be represented on a plane. Now in this case, this plane is called Gaussian plane, complex plane or Argand plane. And what will be the coordinate of this complex number? We take real part of this complex number as abscissa or x coordinate and imaginary part of this complex number as ordinate or y coordinate. And also mod of this complex number gives us distance of this point from the origin. Suppose I have a complex number x plus iota y, then mod of this complex number gives me under root x square plus y square, which is distance of this point from the origin. Okay, so this is all about geometrical form of complex number. Now a complex number can also be represented by another pair of real number which is r and theta. r and theta. Let me draw a diagram here. Let this is a complex number pz. Then r is nothing but the distance of this complex number from the origin, if this is origin, and theta is the angle made by this line with positive direction of x-axis in anti-clockwise direction. Okay, then the coordinate of this complex number will be, I know this is r, then this length will be r cos theta, and this is r sin theta. Now I can write complex number as r cos theta plus iota r sin theta, right? And also r into cos theta plus iota sin theta, and this is called polar form of complex number. ठीक है. Now suppose I have a complex number a plus iota b. Now I want to convert this in polar form. Then what is required? I need r and theta. ठीक है. Now I know r is mod z, which is under root a square plus b square. ठीक है. Then what is theta? How can I find theta? If I divide this y coordinate with x coordinate, what will I get? r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, मुझे मिलेगा tan थीटा. ठीक है. And this is equal to, if this coordinate is x plus, okay, this coordinate is a plus iota b. This complex number is a plus iota b. Then tan theta will be equal to b upon a. ठीक है. From here I can find theta, which is tan inverse b upon a. ठीक है. Now for this particular ratio b upon a, this theta can have infinite number of values. So to get
a particular solution or same solution, we restrict the period of this theta, because I know that in one whole revolution this theta will give me only one value for b upon a, right? And I restrict this revolution from minus pi to pi, minus pi to pi। यानी अगर थीटा की वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में अगर लाई करती है तो उस केस में हम थीटा को बोलेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, और ऐसा करने से हमें सेम सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, अब दो चीजें, पहला कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ दिस ए एंड बी। ठीक है, चारों क्वाड्रेंट में से किसी भी क्वाड्रेंट में। और दूसरा, हमें एंगल चाहिए माइनस पाई टू पाई। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक टेक्निक का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम डिराइव करते हैं एक एक्यूट एंगल विच इज इक्वल टू tan इनवर्स mod of y upon x। For this case we will write tan inverse b upon a। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और उसके बाद हम थीटा की वैल्यू एडजस्ट करते हैं। वो देखते हैं कैसे। मान लीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर फिलहाल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, मान लीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कॉम्प्लेक्स लाई कर रहा है। उस केस में जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा यानी थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा अल्फा के। यानी y और x की वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। ठीक है, उस केस में थीटा होगा अल्फा के पर। सेकंड केस, अगर थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, उस केस में हम क्या लिखेंगे, एंगल तो हमारे पास है एक एक्यूट एंगल अल्फा। उस केस में प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होगा वो होगा पाई माइनस अल्फा। ठीक है, क्योंकि हमें थीटा चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में। उसके बाद आता है थर्ड केस, जब कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब इस केस में क्या किया था हमने, यहां से यहां तक गए थे, और इस केस में हम गए थे यहां से यहां। अब इस केस में हम यहां से यहां तक तो जा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि जो पीरियड है हमारे पास वो है माइनस पाई टू पाई। ठीक है, तो हम उल्टी डायरेक्शन में जरूर जा सकते हैं, यानी हम चलेंगे इस डायरेक्शन में। और आप देखोगे कि ये जो है बिल्कुल इसका मिरर इमेज है। ठीक है, तो हम थीटा क्या करते हैं, हम लिखते हैं माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। ठीक है, बिल्कुल इसका मिरर इमेज है इसलिए। तो फाइनली सॉल्यूशन हमें मिलता है अल्फा माइनस पाई। दिस इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट फॉर थर्ड क्वाड्रेंट। नाउ इन फोर्थ क्वाड्रेंट, suppose this is pz, we get principal argument as minus alpha। ओके, तो इस तरह से हम थीटा की वैल्यू को डिराइव करेंगे सॉल्यूशन पाने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में ये बताया था कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनके सॉल्यूशन रियल नंबर सिस्टम में नहीं होते। ठीक है, उस वजह से हमने डिफाइन किया एक नया नंबर सिस्टम जिसे हमने बोला कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम।
ठीक है। तो अब हम कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे और निकालेंगे उसके सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो देखते हैं कैसे। मैं इसे रब कर देता हूं। Now suppose I have a quadratic equation x square plus bx plus c equals 0, and the solution will be minus b plus minus under root b square minus 4ac whole upon 2a। तो इस फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये सॉल्यूशन हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन हमने पढ़ा था जब डिटर्मिनेंट इस इक्वेशन का होता है नेगेटिव, उस केस में क्या होता है, यहां पर हमें मिलती है एक नेगेटिव टर्म। तो अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो हम क्या करते हैं, हम इस टर्म में से -1 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं 4ac माइनस बी स्क्वायर इंटू -1 होल अपॉन 2a, ठीक है। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर, और यहां पर अंडर रूट -1 हमने बाहर लिख लिया और जो होता है आयोटा के बराबर होल अपॉन 2a, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे जिसके अंदर पोलर फॉर्म से रिलेटेड, ज्योमेट्रिकल फॉर्म से रिलेटेड और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।